ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਹ ਲੋਕ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਾਰਕ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੈਣੀ ਅਤੇ ਹਥੌੜੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਧੂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗਮਗਾਹਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਚੰਭਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਨਾਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम तारक नाथ सूत्रधर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों के दरमियान आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए? पर उससे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ करते हैं? हम तो पहले बोले, हम तो छो मास्क बनाता है, छो डांस भी करता है। लेकिन हम लोग जैसा 2 साल की पहले की बात करना है, जैसे हम लोग को लॉकडाउन के आगे उस टाइम हम लोग बहुत अच्छे से मास्क बेचते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग खुशनसीब थे, जो हम लोग का ज़्यादा सेल हो रहा है मास्क के, छो डांस की ज़्यादा नीट तो हम कर सकें, बार तक करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन पड़ गया, लॉकडाउन की वजह से हम लोग का परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे एक भी कस्टमर नहीं आता यहाँ पर। जैसे सरकार जो माल लेते हैं, हम लोग को जो मास्क खरीदते हैं, वो सब बंद हो गया। कॉम्प्लेक्स जैसा विश्व बंगला कलकत्ता में जो ममता बनर्जी का जो कॉम्प्लेक्स है, जो हम लोग वहाँ से मास्क लेते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया। इसी के चलते हमारा बहुत परेशानी बढ़ गया। इतना आर्टिस्ट लोग है, सबका परेशानी बढ़ गया। जैसे दूर लोग दुर्गा माता में से मूर्ति बनाने जाते हैं, बनाने के लिए वो सब ट्रेन वगैरह सब बंद हो चुका। इसे सब शिल्पी आर्टिस्ट घर में बैठे हैं। इसी के चलते हम लोग का बहुत मतलब परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको आप और क्या कुछ कर लेते हो, क्या कुछ करते हो आप अपनी जीविका कमाने के लिए? आप क्या कुछ करते हो, यह पहले जानना चाहेंगे। अभी जैसे कोई फोन से कोई ऑर्डर दिया, जे मेरे को एक मास्क चाहिए कथकली का, जो डांस करने वाली मास्क, या दुर्गा माता, क्या कार्तिक गणेश, तो हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बनाकर उनको भेजते हैं। तो जैसे हम लोग का पब्लिसिटी और ज़्यादा फैले, जैसे हम जितना अच्छा मास्क देंगे, दाम की कोई फिक्र नहीं, जो हमारा ज़्यादा पैसा बचे ऐसा नहीं चाहिए। हमारा जैसा रोजी रोटी चल जाए और उसका मास्क इतना अच्छा से करे कि उसका घर तक मास्क अच्छे से पहुंच जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा नाम बाहर तक छोड़े, मतलब फैलाया जाए। तो इसीलिए जितना तो मार्क्स हमको मिलता है ऑर्डर, हम ऐसे ही हम लोग का परिवार चलता है। ऐसे बहुत परेशानी है, बहुत मतलब कष्ट से हम लोग परेशानी से हम लोग और हमारा परिवार चलाते हैं। जैसे हम लोग का बांग्ला नाटक .com जो हम लोग वेस्ट बंगाल का एक तो संस्था है, उसको हम लोग NGO बोलते हैं।
वो हम लोगों को बहुत मतलब सपोर्ट करता है। तो इस साल उन लोगों का कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हम लोग कुछ सपोर्ट करना नहीं कर सका, तो इसीलिए हम लोग और ज़्यादा ये परेशानी बढ़ गया। नहीं तो हम लोग कुछ सपोर्ट होता तो हम लोग मतलब बहुत बेहतरीन से हम लोग जी पाते। जी, तो जो आप ये मास्क बनाते हो उसके लिए आपको क्या-क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? किस तरह से इन्हें जैसे बनाते हो और कितना समय और पैसा लगता है इसमें? जैसे मिट्टी हम लोग खरीदना पड़ता है, मिट्टी, उसके बाद कागज लगता है, फेविकॉल लगता है, डीडीएल लगता है, मैदा लगता है, कागज वगैरह लगता है, सूती कपड़ा लगता है। ठीक है, सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा नहीं होता है क्या, जो ऊपर में साटने वाला पॉलिश, जी, उसी में पॉलिश आता है, वो सब लगाना पड़ता है। वो सब बाकी जितना एक एक्रिलिक कलर जो होता है, एक्रिलिक कलर, स्टेनर कलर, कैमेल कलर, पोस्टर कलर जो होता है, उसी कलर से, ब्रांड कलर से हम लोग उसी को पेंट करता है। हुँ, उसके बाद जो मुखौटा पेंट हो गया, उसके बाद जो सजावट आप देख रहे हैं पीछे में जो मुखौटा लगा हुआ है, वो जी, जी। सजावट दुकान से, कलकत्ता से हम लोग मंगा कर, सामने दुकान है वहां से ज्यादा दाम देकर हम लोग खरीदना पड़ता है। जैसे हम लोग 1 लाख या 50,000 रुपया का जो कलकत्ता का माल ले आया, तो हम लोग बहुत ज्यादा मुखौटा कर सकेंगे, लेकिन हम लोग का पैसा नहीं होने से हम लोग सामने दुकान से खरीदना पड़ता है, जैसे ज्यादा पैसा देकर, तो उसी के लिए हम लोग का ज्यादा पैसा नहीं बचता। जैसे हम लोग एक मुखौटा का हम लोग का जो 400 रुपया आ गया, तो उसमें हम लोगों को 200 रुपया और कम हो जाता है, 200 रुपया आता है। जैसे हम लोग का थोड़ा परेशानी होता है, तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कलकत्ता जाएंगे या माल लाएंगे, इतना हम लोग को पास मतलब हाथ चोबल नहीं रहता, पैसा नहीं रहता। हुँ। अच्छा इस सब बनाने में आपको कितने घंटे का या कितने दिनों का समय लगता है? घंटों का बात नहीं मैम, एक दिन जो बनाता है, एक दिन बनाकर हम लोग कागज लगाते हैं, उसके बाद हम एक दिन पहले हम लोग उसको मिट्टी देकर, कपड़ा देकर पॉलिश करता है, तो वो उस दिन पूरा पॉलिश करते जाते हैं, शाम तक उसको उठा देते हैं। उसके बाद 2 दिन तक उसको सुखाकर, पीछे को काट कर, उसके बाद उसको पेंट करते हैं। माने 2-3 दिन लग जाते करने के लिए, एक मास्क। तो हम अच्छा, लोग एक साथ में 5 मास्क बनाते हैं, 5 मास्क के 5 मास्क बनने से क्या होता है, समय थोड़ा कम लगता है। अब मुखौटा 5 एक ही साथ में उठ जाता है, इसीलिए हाँ, हम लोग को पसंद। अच्छा। तो ये सारा काम आप अकेले करती हो या फिर आपके साथ और भी लोग हैं? कितने लोग ये काम करते हैं एक साथ? अपना काम हम लोग अकेला नहीं करते, हम जैसे हम लोग को और लड़का लोग है, जो कोई हेल्पर लोग, जो कोई मिट्टी ऐसा चिटका दिया, जैसा कोई कागज ऐसा करके रख दिया, हम लोग उसको लगाएंगे। कोई कपड़ा सट दिया, कोई मिट्टी लगा दे ऊपर में, ऐसा कि कोई सजावट कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है, ऐसा लड़का लेकर हम लोग काम करते हैं। हुँ। तो एस एक मास्क बनाने में कितने ही लोगों की मेहनत भी लगती है और 3-4 दिनों का समय भी लगता है? एक मास्क बनाने के लिए जैसे लोग, एक आदमी काफी है, लेकिन हर काम करने के लिए लोग दरकार रहता है। जैसे कहाँ से मिट्टी जैसा चिट्टा माटी, जिसको हमको चिट्टा येलो माटी बोलते हैं, उसको बाहर से लाना पड़ता है, तो उसको एक आदमी भेजते हैं, उसके एक आदमी कपड़ा लगा रहा है। हर एक काम करते रहते हैं, एक आदमी एक काम नहीं करता है, हर एक आदमी अलग अलग काम करता जी। है। जैसे तो क्या हम दुर्गा पूजा का जो थीम होता है, ये हुँ, जो दुर्गा पूजा जो मंडप में जो पूजा होती है, उसका जो पैंडल होता है, उसमें हम लोगों का कलाकारी, हम लोगों का वेस्ट बंगाल जो थीम है, वो हम लोग बनाते हैं। कलकत्ता, दिल्ली, हर जगह हम लोगों को बुलाया जाता है, हम उसी में काम करते हैं। जी। यानी कि जो आपकी ये मार्केट लगती है सामान बनाने के बाद में, ये सिर्फ़ आपके ही शहर में नहीं होती बल्कि दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में भी होती है? होती है, हाँ। लेकिन हम जी, लोग को इस साल 2 साल के लिए हम लोग कुछ थीम पिछले वगैरह कुछ हुँ, कुछ भी नहीं मिला, हाँ। ये इसीलिए हम लोग का परेशानी है बहुत है। हुँ। और हम और लोगों को, आर्टिस्ट लोग को कहानियाँ इतना आपको देखिए, कोविड के दौरान ये जो आर्ट है मैम, ये जो आर्ट है, ये हम संभाल के जो रखे हैं, ये जो आर्ट हम सीख के संभाल के रखे हैं, इसको हम मरने नहीं देंगे, इसको हम हटा नहीं हटाएंगे। इसको सरकार को देखना चाहिए, जी हम लोगों को जो पेंशन वगैरह जो मिलना चाहिए, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग जो ये मास्क बनाते हैं, हम लोगों को कुछ पेंशन वगैरह भी कुछ नहीं मिला, इसी के हुँ, चलते हम लोगों को परेशानी है। हम लोगों को यदि पेंशन वगैरह मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हुँ। अच्छा तो आप कितने समय से यह काम कर रहे हो? ये हम लोग का वंश परंपरा काम है। हम लोग छोटा मतलब ज्ञान से हम लोग ये काम कर रहे जी। यानी कि आपको काफ़ी सदियाँ हो चुकी हैं इस काम में। हैं। हाँ।
अच्छा, पहले की कमाई आपकी कितनी थी कोविड के पहले के समय की, अगर हम बात करें 2018-19 की बात करें, हाँ, और अब की कमाई आपकी कितनी है? कितना ज्यादा फर्क आया है इसमें, ये आप बता सकते हो? बहुत बहुत फर्क, अभी एक पैसा भी कमाई नहीं है। जैसे हम लोगों का कोविड से पहले खूब अच्छा से हम लोगों का मार्केटिंग चल रहा था, जी। इतना सुंदर चल रहा था जो हम सोच रहे थे जब कोविड आ गया मैम, उस टाइम हम लोग सोचे जब आज कोविड नहीं आता तो इतना हम लोग दूर ये मुखौटा पहुंचा पाते, ये कलाकार, ये जो कलाकारी है हम लोग का, जो आर्टिस्ट लोग का जितना काम है, आर्ट काम है, वो इतना दूर फैलाते हम लोग, ये सब कुछ 10 साल हम लोग पीछे चला गया। हम्म। तो आप सब सरकार से क्या डिमांड करते हो? सरकार से, लोगों से आप क्या मांग रखते हो? हम एक ही हम लोग का मांग है, जो हम लोग का आर्टिस्ट दूर दूर तक पहुंचाने जाए, और कुछ नहीं, हम लोग को काम मिल जाए ना, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, सिर्फ हम्म। हम लोग को काम चाहिए। हम लोगों को जो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट हम लोग के दूर दूर तो कोई भी आदमी, कोई भी जगह, स्टेट, अभी तक ये मास्क लोग देखते हैं तो कहाँ मिलता है वो नहीं जानता, तो ये मास्क उस जगह तक पहुंचना चाहिए, सरकार को यही हम लोग विनती करते हैं। कैसे पहुंचाना चाहेंगे आप? जैसे देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ऑनलाइन का काम नहीं जानते, हमने किसी भी जगह पर ऑनलाइन का जो काम करके हम लोग ये सब पहुंचाएंगे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ये सब हम लोग का नहीं आता है। वो जिसका सरकार कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, उसको सरकार को मालूम है। इसको ऐसा हम लोग जो हम लोग बता रहे हैं, उस टाइप में जो सरकार कुछ ऐसा भी है जो वहां तक पहुंचाने वाला होगा, ऐसा लोगों को लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो नहीं जानते वो सरकार को देखना चाहिए। हम्म। हम लोगों ठीक। का काम है, हम लोगों का आर्ट आर्ट काम करना, हम हम्म। लोगों का काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम करना है, लेकिन दूर दूर तक पहुंचाने का काम है सरकार का। हम्म। बिल्कुल तय आर्टिस्ट ने जिन्हां दे कोल जो कि मेहनत करना जानते ने, हुनरमंद भी ने ते अपनी आर्ट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।